So very good morning students. This is Deepak Upadhyay, your chemistry teacher. So class 10th, I'm here with the new video and new lecture on chapter acid, bases and salts. So class, we were doing bases, in which we have to study about the chemical properties of bases. Chemical properties of bases. Check. Let us talk about the chemical properties of bases. Okay, so basically bases, the first chemical reaction I am writing over here, just see this. Sodium hydroxide is a base. When it is reacting with carbon dioxide, it is releasing sodium carbonate, and there is one thing coming, that is water. Here, as you can see, when the bases get reacted with carbon dioxide, what would be happen? This carbon dioxide gas has been absorbed by this base, and it becomes carbonate of the metal. This was the metallic hydroxide, which is the base. When it has been reacted with carbon dioxide, this forms sodium carbonate or metallic carbonate. That means जब भी आप किसी भी बेसिस के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं, तो अब आप क्या देखते हैं कि वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है और उसके कार्बोनेट फॉर्म कर देता है. ठीक है. सेकेंड थिंग, दे न्यूट्रलाइज acids after reacting, like here I have taken sodium hydroxide and acid, hydrochloric acid, becomes sodium chloride and water. As you can see, the acidity of the acid has been neutralized by the base and it becomes salt and water. ठीक है. तो they neutralize acids to form salt and water, and this reaction is also known as the neutralization reaction. ठीक है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. They precipitate as an insoluble metallic hydroxide when added to the solution of salts. इन बेसिस का जब सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करता है, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट को मैं रिएक्ट कर रहा हूँ विथ वन थिंग, that is ammonium hydroxide, which is a base, and it is forming a insoluble salt. ठीक है, which is ammonium sulfate and copper hydroxide. So as you can see, third reaction में क्या किया कि when the bases are getting reacted with the any salt, they are forming very tough and insoluble salt after reacting. Okay, so they precipitate as a insoluble metallic hydroxide and a salt, okay, of heavy metals. Next, fourth, when alkalis are warmed with an ammonium salt, ammonium gas is given out. When the bases are getting reacted with ammonium salt, ammonium chloride है आपका, ये एक ammonium salt है. जब इसका रिएक्शन हुआ किसके साथ में, बेस के साथ में, तो उससे क्या बना है, पहले तो salt, water, और there is one thing which is coming in the form of gas, that is ammonia. ठीक है. So ammonia is coming in the form of gases after reacting it with the ammonium salt. ठीक है. चलिए, these were the chemical reactivity of the bases. Now we'll talk about something about pH. You must have heard about this. What do you mean by pH? When I was teaching you about the indicators, तो मैंने आपको चीज़ बताई थी pH के बारे में. pH
जब क्या होता है, पीएच बेसिकली एक इंडिकेटर है विच इंडिकेट्स दैट कि कोई भी सोल्यूशन जो है आपका क्या है, कितना एसिडिक है या बेसिक है। एक मीटर है जिसमें स्पेसिफिक कलर्स होते हैं जो ये रिप्रेजेंट कराते हैं कि जैसे हम उसके साथ उसका टेस्ट करते हैं, आफ्टर रिएक्टिंग इट विथ, वो उसके एक स्पेसिफिक कलर को ऑब्जर्व कराता है और वो कलर जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। एक पीएच मीटर होती है जिस पे ये चीज़ चेक की जाती है। पीएच का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन, वेयर P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, इट स्टैंड्स फॉर पोटेंस, मीन्स होता है इसका पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो किसी भी सोल्यूशन में कितने H+ आयन है ये रिप्रेजेंट कराने का काम है इस पीएच मीटर का, और ये इसको रिप्रेजेंट करा के बताता है कि वो चीज़ क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है। इफ इट इज लेस देन 7, दिस पावर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन 7, तो वो एसिडिक है, और इफ इट इज 7 तो वो न्यूट्रल है, एंड इफ इट इज मोर देन 7 दैट मीन्स कि वो क्या है, बेसिक सोल्यूशन। ठीक है। पीएच का इंडिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो लॉगरिथम से आया है, log base 10 1/H+, और इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ माइनस log 10 and H+ आयन। ठीक है। यही से इसकी स्केलिंग की जाती है किसी भी इसमें, जितना ज़्यादा पावर ऑफ हाइड्रोजन होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिसाइड करते हैं कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है। तो देयर आर स्पेसिफिक कलर्स, लॉगरिथम्स की कंपैरिजंस में हम देखते हैं और वहाँ से इसका पोटेंशियल निकालते हैं, पावर निकालते हैं। ठीक है। आपके क्लास में इतना ज़्यादा हैवी इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, तो आई एम जस्ट टीचिंग यू कि इसका क्या रोल है, बस नथिंग एल्स। चलिए, नाउ विल बी मूव टू सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली सॉल्ट्स आर फॉर्म with the help of acid and bases. In the neutralization reaction you have studied, when acid are getting reacted with bases, they are forming salts and water. ठीक है, this happens, है ना? न्यूट्रलाइजेशन आपने पढ़ा था। तो salt is a compound, it is a compound which is formed by partial or total replacement of the ionizable hydrogen atoms of an acid by a metallic ion or a metallic hydroxide। मतलब OH आयन जो है आपका, जो बेस का मौजूदा OH आयन है, वो जब एसिड के H+ आयन को रिप्लेस करता है टोटली या पार्शियली, तो इस कंडीशन से जो फॉर्म होता है कंपाउंड, दैट इज सॉल्ट। एज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टिंग विद HCl, तो यहाँ आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट करा रहे हैं। ठीक है। H+ आयन आपका क्या रिप्लेस करा रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन को, और यहाँ से ये क्या बन रहा है, कंपाउंड के फॉर्म में सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है। तो इस रिएक्शन को हमने क्या कहा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्योंकि एसिडिक और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है। चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। बेसिकली सॉल्ट्स आर क्लासिफाइड टू 6 फॉर्म्स, लेकिन आपकी क्लास में सिर्फ आपको 3 ही पढ़ने हैं। ठीक है। इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, रेस्ट ऑफ द 3 आर नॉट इन योर सिलेबस। तो इसमें से 3 आपके जो मेन आपके वो आते हैं, दोज आर, फर्स्ट वन इज नॉर्मल सॉल्ट्स। नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होता है, जरा देख लेते हैं इसमें। नॉर्मल सॉल्ट्स आर द सॉल्ट्स फॉर्म बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड बाय मेटलिक और अमोनियम आयन। जब हाइड्रोजन आयन का रिप्लेसमेंट किसी हाइड्रोनियम आयन या अमोनियम हाइड्रोनियम आयन के से द्वारा हो जाता है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है रिप्लेसमेंट, तो उसको हम नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस रिएक्शन ओनली, अगर आप यहाँ पे देखें तो इस हाइड्रोक्सिल आयन ने क्या किया, हाइड्रोजन आयन को यहाँ पूरी तरीके से क्या किया, कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया, है ना? तो इस काइंड ऑफ रिएक्शन को, इस काइंड ऑफ सॉल्ट्स को क्या कहते हैं, यहाँ का क्या है, नॉर्मल सॉल्ट्स है। ठीक है, क्लियर है? नाउ सेकेंड वन इज
acid salts. Acid salts are those salts which are formed by partial replacement of ionizable hydrogen atoms of polybasic acids by metal or an ammonium ion. ठीक, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक, I am taking sodium chloride and sulfuric acid. When they are getting reacted to each other, they are forming sodium hydrogen sulfate and H2, sorry H2, हाँ इसमें HCl बचेगा ना, HCl will be fine. तो as you can see, the replacement of hydrogen from this acid is not completely had been done. यहाँ partial replacement हुआ हाइड्रोजन का, है ना. तो ये जो एसिड आपका जो सॉल्ट बन के आया है, दिस सॉल्ट इज नोन एज अ एसिड सॉल्ट. ठीक है, इस सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? एसिड सॉल्ट कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज बेसिक सॉल्ट. थर्ड वन इज बेसिक सॉल्ट. So basic salts are formed by the partial replacement of hydroxyl group of the di or triacidic basic. ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपने रिएक्शन में देखा है, रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन का पूरी तरीके से कम्प्लीटली नहीं हो पाया है, तो दैट्स वाई आपने क्या कहा इसको एसिड सॉल्ट्स कहा. लेकिन जहाँ पे बेसिक सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होंगे जहाँ पे आपका कंपाउंड जो फॉर्म होकर आ रहा है वो पूरी तरीके से हाइड्रोक्सिल आयन का क्या नहीं हुआ है, रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है. एज आई एम टेकिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस, है ना, and it is reacting with HCl and it is forming magnesium hydroxyl chloride MgOHCl, है ना, and one thing is coming that is H2O. ठीक है, तो as you can see कि इस बेस से हाइड्रोक्सिल आयन का पूरी तरीके से रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? बेसिक सॉल्ट कहलाएगा. ठीक है, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इसके आके इस में आगे हैं विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है, तो दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस नाउ. सम मेथड्स आर देयर गिवन विच इज़ फॉर द प्रिपरेशन. देयर इज प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. इसके बाद आपका प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्ट्स है और सम सॉल्ट्स आर देयर जिसका हम लैबोरेटरी प्रिपरेशन भी सीखना है. तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. नेक्स्ट जो है आगे नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू क्लास.